السلام علیکم۔ یہ کہانی میری آپ بیتی ہے۔ میرا نام عدیل ہے۔ میں چائنا اسکیم میں رہنے والا ہوں۔ میں جب 5 سال کا تھا تو میں گھر کے قریب گراؤنڈ میں کھیلا کرتا تھا۔ وہ گراؤنڈ ویران تھا کافی عرصے سے، تو میرے دوستوں نے اور میں نے مل کر اس گراؤنڈ کو صحیح کیا اور ہم وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب میں کھیل کے آیا تو ٹھیک مغرب کے بعد مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا، حالانکہ میں کبھی ڈرا نہیں تھا۔ میں نے اپنے والدہ کو بتایا اور تو انہوں نے قریبی مسجد میں سے مجھے دم کروایا تو میں بہتر ہو گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، میں وہاں روزانہ کھیلنے جاتا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ میری ہڈیاں بہت درد کرتی تھیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے۔ وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے۔ رپورٹ میں ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوائیاں بھی دی مگر آرام نہیں آیا۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے ٹھہرا ہے۔ میں جب پیچھے دیکھتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، رات کے تقریباً 12 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میرے ساتھ چارپائی پر والدہ صاحبہ لیٹی ہوئی تھی اور پیچھے کی طرف میری بھابھی ماں لیٹی تھی۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے میری بھابھی ماں کی شکل میں ایک عورت دکھائی دی۔ وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ بھابھی ماں تو لیٹی تھی، پھر اوپر کیا کرنے گئی؟ یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو وہ عورت اچانک پیچھے ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو بھابھی ماں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ساری رات میں نے ڈر سے گزاری۔ صبح کو پھر میں نے والدہ صاحبہ کو بتایا تو انہوں نے پھر قریبی مسجد سے دم کروایا۔ السلام علیکم۔ آج آپ بیتی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر چند دن کے بعد رات کے تقریباً 8 بجے ہوں گے۔ سردیوں کی رات تھی اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو میں کام کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی بمشکل چلے۔ میں تھوڑا سا چلا تو پھر بھاری قدموں کی آواز آئی۔ قدموں کی آواز ایسی تھی کہ کوئی بہت ہی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ میں نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میرے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تو قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ عید الفطر کا دن تھا تو ہم نماز عید کی تیاری کر رہے تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں گیا تو ایک ملنگ بابا ٹھہرے تھے۔ میں نے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے کہا، میرا چائے پینے کا دل کر رہا ہے۔ میں پیسے نہیں لیتا اور ملنگ بابا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر، میں چائے لے کر آیا تو اس بابا نے مجھے میری باتیں بتانا شروع کی۔ وہ چائے کا گھونٹ پیتا، پھر میری بات کرتا۔ آخر میں جب اس بابا نے چائے پی لی تو اس نے کہا، بیٹا، دنیا زور لگائے گی تجھے ذلیل کرنے کے لیے، محض کچھ کر نہ سکے گی۔ مجھے کہا، جا پیالہ دے کر آ۔ میں پیالہ دے کر آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گلی میں بھی دیکھا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ اس کی باتوں کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں لگی، لیکن کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ جو بھی میرے خلاف بات کرتا اس کا نقصان ہو جاتا تھا۔ ایک دن میرے بہت ہی قریبی دوست نے میرا دل دکھایا تو اگلے دن وہ بیمار ہو گیا اور کافی دنوں تک بیمار رہا۔ میرے جسم میں درد رہتا تھا، میری ہڈیاں درد کرتی تھی۔ میں نے کسی کو نہ بتایا۔ میری حالت قابل رحم ہو گئی تھی اور میں دن میں ہر 3 گھنٹے بعد کھانا کھاتا تھا اور 3 روٹیاں کھانے کے بعد بھی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ میں بہت موٹا ہو گیا تھا۔ مجھ سے چلنا بھی محال تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ میں بہت روتا تھا اور دعا کرتا تھا، میرے پیارے اللہ، کوئی سبب بنا۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ میں نے اپنے اسکول کو بہت سے میچ جتوائے تھے۔
मैं फास्ट बॉलर था, पर मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि बैट तक नहीं घुमा सकता था। जब मैं बॉल करवाता था तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से बॉल जाती थी। बहुत परेशान था कि ये क्या बन गया मेरे साथ। आ जाएं कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पुराना घर था वहाँ पर जिन रहते थे। मुझे अपने घर में कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे घर की छत थी वहाँ मुझे बहुत डर लगता था। मैं छत पर जाने से भी डरता था और मुझे वहाँ पर खौफ भी बहुत आता था। हमारे घर की छत पर रहते थे जिन। फिर हम लोगों ने किराए का मकान लिया। वो घर ज़रा वीराने में था। वहाँ पर 2 या 3 घर और थे। हमारा मकान बन रहा था, इसलिए हमें वहाँ पर रहना था और पुराना मकान हमने बनवाया था। एक दिन वॉशरूम जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं आधा नींद में था और आधा जाग रहा था। सामने ही किक्कर का दरख्त था। मेरी नज़र अचानक से इस दरख्त पर गई। मुझे वहाँ पर 2 साए दिखाई दिए। छोटा साया आगे आगे भाग रहा था और बड़ा साया इसके पीछे पीछे भाग रहा था। इसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो छोटा साया भागता हुआ रुका और वापस किक्कर के दरख्त के पास आया और आंखों से ओझल हो गया। और बड़ा साया भी इसके पीछे ही था। वो भी दरख्त के पास आया और गायब हो गया। मैं अपने अब्बू के साथ वाली चारपाई पर भी नहीं सो सकता था। सर्दियों के दिन थे और घर पर मेहमान आए थे, तो मुझे अब्बू के रूम में सोना पड़ा। रात के तकरीबन 12 का टाइम हो गया था जब मुझे अचानक से एक हाथ दिखाई दिया। इस हाथ के ऊपर खाल नहीं थी। मेरी अचानक से फिर आंख खुल गई और मैं खौफ की वजह से सारी रात नहीं सो सका था। मेरे अब्बू जान को भी जिन थे, पर इनको कभी भी कुछ नहीं कहा। मुझे वो बहुत तंग करते थे। आप लोगों को एक और बात बताता चलूं कि हमारे घर में एक चारपाई थी सुर्ख रंग की। इस पर कोई भी सो नहीं सकता था। एक दिन मैं सो गया। इस पर आधी रात का टाइम हो गया था। किसी ने मेरे पाँव को छुआ। मेरी आंख खुल गई। देखा कुछ भी नहीं था। मैं फिर सो गया। फिर मुझे किसी बच्चे के हाथ महसूस हुए। फिर मेरी आंख खुल गई। देखा कोई भी नहीं था। सारी रात मेरी उसी तरह गुजर गई। जब भी मेरी आंख लगती तो कोई चीज़ मेरे पाँव को छूती और मेरी आंख खुल जाती, या फिर बच्चों के हाथ महसूस होते। मैं कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर सकता था। मैं जैसे ही कुरान पाक की तिलावत शुरू करता, मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती थी और पेट में दर्द शुरू हो जाती थी। आ जाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। कई बार सोचा कि ख़ुदकुशी कर लूं, पर मैं खुद पर कंट्रोल किए रखा। मेरे 12वीं क्लास के पेपर थे। बोर्ड के मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा जिस्म दर्द करता और हाथ कांपते थे। चला भी नहीं जाता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी ना थी कि मैं सेंटर तक चला जाऊं। बहुत मुश्किल से कदम उठा पाता था। फिर एक दिन अब्बू किसी आमिल को ले आए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और एक छड़ी मंगवाई। छड़ी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली। मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं। फिर उन्होंने अमल शुरू किया। मैं इनका अमल सुनता रहा। मैं डरा हुआ था। अमल ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा, बेटा कुछ महसूस हो रहा है? मैंने कहा हाँ, बस हल्का सा दर्द हुआ। उन्होंने कहा इस बच्चे को कुछ नहीं है, आपके घर में है, जो भी है। खैर वो मुतमईन नहीं कर सका। फिर एक दिन कारी सदाकत साहिब हमारे घर मिलने आए, तो भाई ने इनको बताया कि कहा कि मैं 2 या 3 दिन बाद बताऊंगा। उन्होंने हिसाब किया और बताया कि इसके ऊपर 7 जिन्नात हैं, 3 जिन और 4 जिन्नियाँ। उन्होंने फिर मेरा इलाज शुरू किया। मैं पेपर में पढ़ा हुआ पानी लेकर जाता था। जब मेरा हाथ और टांगें कांपना शुरू होती
तो मैं पानी पीता सुकून आ जाता। इसी तरह मैंने बोर्ड के पेपर दिए, फिर मुझे कुछ अमल भी बताए। वो जब मैं करता तो औरतों की आवाज़ें आती, वो मुझे गालियाँ देती और उन्होंने चोरियाँ भी की। मेरे जेब से पैसे भी गुम हो जाते थे। एक दफ़ा मैंने कमीज़ उतारी और पानी पीने गया। वापस आया तो जेब से 2000 गायब थे। मैंने शोर मचा दिया तो सब घर वाले ढूंढने लगे। 500 रुपये छोटे भाई को फ्रिज के पीछे से मिले। हमारे घर की चीज़ें गुम हो जाती थी तो सब मुझे कहते हैं वजीफ़ा शुरू करता। मैं वजीफ़ा शुरू करता तो सबको कहता पूरे घर में ढूंढो, तो वो चीज़ मिल जाती थी, पर किसी और जगह से चीज़ें गुम हो जाती थी। मैं वजीफ़े के ज़रिए वापस ले आता। आखिरी किस्त है ये। मैंने अपना इलाज करवाया तो आग का बहुत बुरा लावा जलाया गया। मुझे इसके करीब बिठाया गया। आग की तपश बहुत ज़्यादा थी, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। जैसे जैसे आग की तपिश मुझ पर पड़ती, सुकून मिलने लगा, पर इन जिन्नात को जला दिया गया। मैंने खुद देखा इनको जलते हुए। वो गालियाँ दे रहे थे और भीख मांग रहे थे। फिर जब वो जल गए तो मुझे ऐसे लगा मेरे जिस्म से बोझ उतर गया, पर मेरी जहानत चली गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैं पूरा 1 साल यूनिवर्सिटी भी नहीं गया। फिर मैंने दिन रात मेहनत की। जो जिस्मानी कमज़ोरी थी इसको दूर किया, वर्जिश की और वज़ाइफ किया करता था। और आज मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। जहानत भी वापस आ गई, पर आज भी जगह जहाँ भारी हो वहाँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। जब मेरा इलाज चल रहा था तो मेरा तावीज़ वाला पानी पीने के लिए अलग कप था। एक दिन मेरे छोटे भाई ने इसमें पानी पी लिया तो रात को इसके पास एक चुड़ैल आई। वो बताता है कि इसने वो सूट पहना हुआ था जो छोटी बहन ने सदका दिया था। इसके हाथ में आटे की तरह कुछ था जो वो उड़ा रही थी। कहने लगी कि तेरी जुर्रत कैसे हुई, तूने इस कप में पानी पिया। और इसने कहा तुझसे डरता नहीं हूँ और वो मेरा भाई है। इसके बाद इसने आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया तो चीखें मारती हुई भाग गई। दोस्तों, ये थी मेरी सारी कहानी, ये मेरी ज़िंदगी का सारा मरहला। अब मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर किसी स्टोरी के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।